بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ انسان اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کچھ اہم فیصلے کرتا ہے اور کچھ فیصلے عارضی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے مستقل ہوتے ہیں۔ کچھ فیصلوں کو بدلنے میں انسان کو نقصان نہیں ہوتا اور کچھ فیصلے انسان بدل نہیں سکتا۔ کچھ فیصلے انسان بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں تو ہم اس کے متعلق کچھ بات کر رہے تھے۔ تو ایک فیصلہ اور جو اہم ترین فیصلہ ہے، جو دو خاندانوں کو جوڑنے کا فیصلہ ہے، جو انسان کی لمبی سے لمبی زندگی میں انسان اس فیصلے سے جڑ جاتا ہے اور جس کو بدلنا یعنی فیصلے کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ فیصلہ ہے شادی بیاہ کا۔ کبھی کبھی انسان ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ عورت میری زندگی کے لیے بالکل فٹ ہے، اور عورت بھی سوچ لیتی ہے کہ یہ آدمی میری زندگی کے لیے بالکل فٹ ہے۔ بظاہر دنیاوی طور پر دیکھنے کے لیے کہ انسان کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا پیسہ ہے، زندگی ابھی کیسی گزر رہی ہے، پورے خاندان کے ساتھ جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا پسند کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ، کچھ فیملی میں، کچھ خاندان میں، اور کچھ خاندان میں نہیں دیکھا جاتا۔ کچھ خاندان میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ گزارا ہو جائے گا، لیکن لڑکی کو نہیں پوچھا جاتا کہ تم اپنے ساتھ اپنی جیٹھانی کو یا اپنی دیرانی کو یا اپنی نند کو دیکھنا پسند کریں گے، ان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ظاہری شکل دیکھ کر یا ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر بہت سارا پیسہ ہے یا ایک اسٹیبل فیملی ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم فوراً شادی کر لیں۔ ایسا فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ مکمل جانچ پڑتال کرنے کے بعد، تھوڑا وقت لیتے ہوئے، تھوڑا بہت غور و فکر کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سارے مسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے، سب چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ کسی کی زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کسی خاندان کو اجاڑ سکتا ہے، اور دوسری بات، خاندان بنا بھی سکتا ہے، خوشحال بھی کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب کہ یہ شادی بیاہ کا جو فیصلہ ہے، یہ انسان کو بہت زیادہ سمجھ سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب کچھ جگہوں پہ یہ فیصلہ ماں باپ کرتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر ارینج میرج کہتے ہیں۔ اب اس کی بہت ساری کیٹیگری ہے، ہم وہ ساری کیٹیگریز کے اندر نہیں جاتے، لیکن ارینج میرجز جو ہوتے ہیں، جس میں معاف کیجئے تھوڑا سخت ہو جائے گا، لیکن کبھی ہم لڑکی کی مرضی نہیں پوچھتے۔ ہاں بھئی فلانا رشتہ ہے، اچھا پڑھا لکھا ہے، بس ہم آپ کی شادی وہاں طے کر دیتے۔
दैट्स इट, फैसला सादिर कर दिया, उसको नहीं पूछा गया, हालांकि उसके मुतालिक फैसला हो रहा है। आजकल तो खैर जमाना तब्दील हो रहा है और यहाँ वेस्ट के अंदर तो बात ही कुछ और है, लेकिन हमारे मशरकी माहौल के अंदर भी इस तरह की चीजें नजर आती हैं। और खानदान अच्छा होता है, शादी ब्याह हो जाती है, कहीं लव मैरिजेस होती है, मोहब्बत की शादी, पसंद की शादी। अब इसमें बहुत सी जगह पे हमारी पसंद गलत साबित हो जाती है। हमने फैसला किया, हमने पसंद किया, और पता चला कि 1 साल या 2 साल या 3 साल में डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गई। अब तलाक एक मामूली सी चीज है, यानी आप इस माना के अंदर कि आप शादी कर रहे हैं, दो जिंदगियां साथ मिलकर अपने बच्चे पैदा करेंगे और साथ खानदान बनाएंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ये फैसला किया। और 2-3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर इतने इख्तलाफात हुए कि अब वो फैसला बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अब हम नहीं सोच पा रहे कि हम जो फैसला करने जा रहे हैं, तलाक का फैसला, जुदाई का फैसला, और अगर हमारे 2-3 बच्चे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम तो अपनी खुशी या अपनी रंजिश के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के इकट्ठे प्यार से महरूम हो रहे हैं, मुकम्मल अटेंशन से महरूम हो रहे हैं। माँ बाप उनको अटेंशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि दोनों दुखी हैं, दोनों तकलीफ के अंदर है, दोनों ज़हनी दबाव का शिकार है। तो अब क्या, अब बच्चे छोटे, वो जिस तरह से जिंदगी गुजारेंगे या अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे, आप और हम शायद इतना नहीं समझ सकते हो जितना कि वो बच्चे खुद बड़े होकर महसूस करते हैं, क्योंकि उनको किसी का भी एक का प्यार नहीं मिला। और वैसे हमारे कल्चर के अंदर ऐसा है कि जब जुदाई होती है, जब तलाक होता है, तो मोहब्बत से या अंडरस्टैंडिंग से तलाक नहीं होती है, दुश्मनी में होती है, गुस्से में होती है, नफरत में होती है। जब गुस्से में और नफरत में एक तलाक होती है तो इसका मतलब कि दो खानदान नफरत से अलग हुआ। जब दो खानदान नफरत से अलग हुआ तो सोचिए कि बच्चा अगर माँ के पास है तो माँ अगर कोई बात करती है तो वो बाप की तरफ नफरत का इजहार करते हैं, और जो बच्चा बाप की तरफ होता है वो माँ की नफरत का इजहार करते हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसे बच्चे देखे हैं कि कोई बच्चा अपने बाप से नफरत करता है और कोई बच्चा अपनी माँ से नफरत करता है। बर्दाश्त कर सकते हैं हम कि हमारे बच्चे, हम जिसको अपने कलेजे का टुकड़ा कहते हैं, हम जिसे अपनी जानो जिगर कहते हैं, वो हमसे नफरत करे, क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि ये हर घर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा हो गया है कि जब डिवोर्स होते हैं, जब तलाक होती है तो नफरत के आलम में होती है। अगर मोहब्बत के आलम में हो तो फिर तलाक ही क्यों? यहां वेस्ट के अंदर क्या है, अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स होता है, ठीक है, नहीं बनती है, साइन किया, अलग हो गए, नफरत नहीं होती है।
लेकिन बात वही है कि बच्चा अगर माँ के साथ पल रहा है तो वो बाप से मोहब्बत नहीं करता है, और अगर जो बाप के पास पल रहा है तो बच्चा माँ से मोहब्बत नहीं करता। यानी दिल के किसी न किसी कोने में नफरत रहती है। तो ये जो फैसला, शादी का फैसला है, ये बहुत सोच और विचार के बाद, बहुत ही डिस्कशन के बाद और बड़े आराम से बैठकर ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि एक जोड़े से, दो जने से औलाद पैदा होती है, नस्लें आगे बढ़ती है, और अगर जो उनके अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत और वफादारी है तो वो खानदान आगे जाके तरक्की करता है, आगे जाके उनके दिलों में मोहब्बत और प्यार होता है। लेकिन अगर हम अपना फैसला सही नहीं कर पाते हैं तो फिर आ जाते हैं तलाक पे, और तलाक का भी फैसला जज्बात में नहीं करना चाहिए, हकीकत को सामने रख कर करना चाहिए। क्योंकि जज्बात में तो ठीक है, तू मुझे पसंद नहीं है, वो कहेगी तू मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, बेहतरीन नतीजा कैसे निकाल सकते हैं? जिस तरह से हमने शादी अगर जल्दबाजी से की, इसी तरह से तलाक भी अगर हमने जल्दबाजी से की तो फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि का कौल है कि मेरे नज़दीक सबसे नापसंदीदा फेल है वो है तलाक। नापसंदीदा फेल, नापसंदीदा जो काम है वो तलाक है, डिवोर्स है। चाहे वो ईस्ट में रहता हो, वेस्ट में रहता हो, ये एक अच्छा सुकून नहीं है, एक अच्छा सुगंध कह दें वो नहीं है, ये अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि भुगतना बहुत सारे लोगों को पड़ता है। बहन भाई दोनों साइड के होंगे, उनके अंदर भी मोहब्बत नहीं रहेगी, माँ बाप होंगे उनके दरमियान भी मोहब्बत नहीं रहेगी, और जो बच्चे होते हैं दोनों साइड के, वो भी एक दूसरे से कटे कटे रहेंगे। क्या हम ये चाहते हैं? तो सोचिए कि जो कुदरत ने हमें कुछ फैसला करने का अख्तियार दिया है, सिर्फ अपने फायदे के लिए मत सोचें। ठीक है, मेरी जान छूटेगी इस औरत से, या औरत कहे मेरी जान छूटेगी इस आदमी से, इसका मतलब खुद गर्जी है। मैं खुद गर्ज हूं, मैं अपने लिए सोच रहा हूं, अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रहा, अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रहा, अपने माँ बाप के लिए नहीं सोच रहा। अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस देना पड़ता है, अब देकर देखो, घर को बनाकर रख कर देखो, अब देखोगे 15-20 साल 25 साल जैसे तैसे भी मार खाते हुए भी, लड़ते हुए भी अगर आपके गुजर जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, एक खानदान को बचा लिया, एक खानदान को बिछड़ने से बचा लिया, उजड़ने से बचा लिया, और हम आगे और आगे आगे चलते जाएंगे। चूँकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक़ल सलीम दी है, तो उस अक़ल से सोचते हुए हमें काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जियो और जीने दो।